Good morning, guys. Welcome back again. This is day 3 of our trip, and we are sitting here with this lovely view behind for breakfast. अभी बिल्कुल खाली है. I think most of them have already had their breakfast and left. But okay, so just look at this view. मतलब मैं आपको अच्छे से दिखाती हूँ उल्टी तरफ से, फिर समझ में आएगा. It's so refreshing early in the morning to begin your day just like this with a breakfast. Breakfast भी काफ़ी okay-ish है. Nothing, I wouldn't say it's great, but it's quite okay. I'm enjoying the view. यहाँ पे बैठ के आपको दिखाते हैं the other side. So guys, we have come to this Merkara coffee plantation. यहाँ पे they give a coffee plantation tour to everyone, and they have their own rotisserie where they show how the coffee is blended और वो सब कुछ. तो हम अभी जा रहे हैं tour पे. We have one guide also with us who's going to walk us through the plantation and everything, show us पूरा कैसे coffee का plantation बनता है and all that. तो ये रास्ता है, यहाँ से हमें ऊपर जाना है. ऊपर जाके वहाँ पे प्लांटेशन और सब कुछ है. तो हमारे गाइड ने बोला है ऊपर जाके वेट करने के लिए. एंड काफ़ी चढ़ाई है गाइस, स्टैमिना लगेगा. जो ब्रेकफास्ट खाया था सारा हजम हो जाएगा. So this is one of the variety called Liberica, originated from Liberia. So पत्ते के हिसाब, साइज के हिसाब से you can differentiate the plant. So there it is a variety called Robusta. थोड़ा छोटा है पत्ता, और सबसे छोटा पत्ता वाला उधर एक प्लांट है ना, वो अरेबिका है, स्मॉल वन. So पूरे वर्ल्ड में 75% of coffee cultivation it is Arabica, 25% it is Robusta, only 1 to 2% it is Liberica. The coffee beans which are almost ready for harvesting, and हमारे गाइड ने अभी हमें बताया December to January is the time when these beans are harvested usually. So हम लोग सही सीजन में आए हैं. अभी हार्वेस्टिंग होने वाला है. ये जब भी पके नहीं रहते, so they are green like this, and ऐसे जब लाल हो जाएंगे that means it's ready for harvesting. are the 5 stages that will take your bean to the cup of coffee. So harvesting के बाद होता है pruning. So हर एक individual branches को check करते हैं. So only the branches with more of spikes or buds for the next year season coffee it will be let off in the plant. Remaining unwanted branches को पूरा काट के निकालना पड़ते हैं. फिर main stem से बहुत सारे extra growth निकलते रहते हैं, उसको भी निकालना बहुत ज़रूरी है. Tejpatra, Tamalpatra, Tamrapatra and all they call, no? So strong smell. So for biryani, pulao, ghee rice, North Indian curries, masalas, फिर चाय में भी यूज़ कर सकते हैं. और चाय में भी चलता है. काफ़ी मज़ा आ रहा है guys. I mean this is quite an interesting thing. I would recommend everyone to do if they come to Coorg. So initially green रहते हैं, after ripening it will turn yellowish in color. It is ready for harvesting almost. So Africa वाला fruit इससे भी double triple size रहते हैं, कुछ size ऐसा रहते हैं. अभी ये plant थोड़ा छोटा है. So lifespan of the plant it is around 100 to 130 years approximately. नया branch आता है. जो कटा हुआ ब्रांच है उसका पूरा छिलका हटा के वो लोग डायरेक्टली धूप में सुखाते हैं. वो it will be ready for the use. So this is the Indian cinnamon that will be slightly more spicy and good in aroma. That is why usually used in biryanis and masalas. This is where the coffee beans are sun dried guys. यहाँ से ऐसे black in color हो जाते हैं. Then they take it for blending. Good for
These are all the, you know, the सारे products जो यहाँ पे बनते हैं इस state में, they're all made over here. They have different things, जैसे कि ये मसाले, you can buy this whole bottle of मसाला है. This is coffee scrub. This is good for skin and all, coffee scrub. They have soap, coffee soap, so many different type of spices. और नीचे यहाँ पे these are all different types of wines, grape wine and pomegranate wine. So guys, अभी approximately हमें वहाँ पे 1.25 घंटा के आसपास लगा. It was good. बहुत ज़्यादा information था, but उतना ज़रूरत नहीं पड़ता है. जिनको कॉफी में इंटरेस्ट है उनके लिए इंटरेस्टिंग लगेगा. जिनको कॉफी में इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है उनके लिए अलग बात है, लेकिन मेरे को उतना खास नहीं लगा. It was okay, but the thing is that we had a bit of coffee over there. आपको दिखाया शौकत ने. The coffee was very good, no doubts about it. थोड़ा माइल्ड था, it was good. Second thing, एक चीज इन लोगों ने बताया, when you are in Kurg, people try and sell you homemade chocolate. वो actually homemade होता नहीं है. There is a factory. वहाँ पे बहुत ही सस्ता क्वालिटी का चॉकलेट बनाया जाता है. नॉर्मल कंपोर्ट चॉकलेट. वो बहुत गंदा क्वालिटी का होता है, उसमें शुगर कंटेंट बहुत ज्यादा होता है. What they do is they buy that chocolate from there, melt it at home, give it different shapes and sizes, and they sell it. In fact, अगर आप बॉम्बे, दिल्ली वगैरह में भी हैं, आपको बहुत जगह मिलेगा homemade chocolates. 90% of them are fake, क्योंकि मैंने बहुत बार ट्राई किया है. So they are very bad, very high on sugar content, and it's not all that good. So we are just heading to a hotel and we will just have lunch, and उसके बाद शाम का प्लान देखते हैं क्या है. Come to this cane shop. यहाँ पे सब ये handmade cane की चीज़ें मिलती हैं. All different things, different kind of baskets. ये सब raw variety में ऐसे दिखते हैं, but if you color them and make it yourself, you can make some amazing decor items out of these. So many different types. यहाँ पे ये काम हो रहा है केन का. So now we are going towards the Dubare Elephant Camp. यहाँ पे सुना है एलिफेंट्स को बहुत नेचुरल हैबिटेट में रखा जाता है. यहाँ पे यू कैन गो एंड फीड द एलिफेंट्स एंड वॉच देम टेक अ बाथ एंड ऑल दैट. तो अभी पता नहीं एग्जैक्टली कैसा होने वाला है. मैंने जो रिव्यूज़ में पढ़ा था इंटरनेट पे वही बताया. अभी जाके हम दिखाने वाले हैं आपको कि हाउ इज इट एग्जैक्टली. अभी हम हाथी देखने जा रहे हैं. सो there is a long line queue. अभी ये लाइन में वेट करके हमें वहाँ से बोट लेनी है to get to the elephant camp. Now we are going into the boat. तो बोट से हम इस वाले आइलैंड पे आ गए और यहाँ है एक्चुअली द एलिफेंट कैंप. This is what I don't like. This is really bad.
তো বাচ্চা হাতি তোর তোর ফোন থেকে ছবিগুলো হ্যাঁ ছবি দেখছি ও চলে যাবে। আমি নিশ্চিত This is really bad, guys. This is the entire area. यहाँ पे तो गाइस देखा आपने कैसे यहाँ पे हाथियों को नेचुरल हैबिटेट में ये लोग मेंटेन करते हैं, लेकिन तब भी चेन डालते हैं। हाँ, दैट इज़ द ओनली थिंग जो बहुत बुरा लगा। शायद सुबह के वक्त अगर आप आएंगे, हम तो अभी शाम को आए, तो यू कैन सी देम यू नो टेकिंग अ बाथ ऑल्सो इन द रिवर एंड ऑल दैट। तो इट्स अ गुड एक्टिविटी टू डू इफ़ यू आर हियर इन कोर्ग। बट जो सबसे बुरी बात वही लगी कि सारे हाथियों को पैर में इतना हैवी चेन्स इन लोगों ने बांध के रखे थे। इवन एक छोटा सा जो बच्चा वाला उसको भी चेन, जो आपने देखा होगा एक वीडियो में, that is really inhuman। इतना छोटा सा बच्चा था, शायद हार्डली 6 महीने का भी नहीं होगा। हाँ, और यहाँ पे सब आसपास ये पूरा नेचुरल हैबिटेट है, तो मतलब चेन बांध के रखने का क्या लॉजिक है, कुछ समझ में नहीं आया। Anyways, चलिए अभी हम जा रहे हैं। वही है, टोटल हमको यहाँ पे आने के लिए 80 रुपीज़ स्पेंड किए पर पर्सन हमने, बोट राइड एंड आई थिंक दैट इज़ इंक्लूडिंग द एंट्री टू द आइलैंड ऑल्सो, एंड 30 रुपीज़ फॉर पार्किंग। हाँ, लेकिन एक बात है, आई विल लाइक टू से कि वो बोटिंग के लिए काफ़ी लाइन लगती है, बिकॉज दे डोंट हैव इनफ बोट्स। तो आई विल रेकमेंड 1 घंटा लग जाता है। हाँ, आप लोग करेक्ट you know wear the right kind of clothes and footwear so that you can remove your shoes and probably walk down the stream। पानी का जो वो ज़्यादा बिल्कुल भी डेप्थ नहीं है, यू कैन ईजिली वॉक डाउन। थोड़ा स्लिपरी है, काफ़ी लोग गिर रहे थे, इसलिए हमने चांस नहीं लिया पानी में गिर के यू नो कपड़े भीग जाएंगे एंड ऑल दैट, तो हमने बोट से ही आना सेफ समझा। बट इफ़ यू वांट यू कैन डू दैट एज वेल टू सेव टाइम। तो गाइस वहाँ से आने के बाद बहुत ही पूरा दिन काफ़ी थकान बढ़ा गया, इसीलिए आई डिसाइडेड टू टेक अ डिप इन दिस पूल। वी हैव आवर ओन वेरी ओन प्राइवेट स्विमिंग पूल। पानी ठंडा ठंडा, बहुत मज़ा आ रहा है। अभिजीत इज़ नॉट गोइंग टू डू बिकॉज उसे डर लग रहा है कि उसे ठंड लग जाएगी, बट मज़ा आ रहा है। यू नो वंस यू गेट इन टू द वाटर, उसके बाद उतनी ठंड नहीं लगती। तो आई एम जस्ट एंजॉइंग दिस डिप। So guys, this is the look आपको हम दिखा रहे हैं। ये टॉर्च का लाइट आपको दिख रहा होगा। This is the look. This is actually a river. यहाँ से नदी जाती है। ये जो आपको लाइट दिख रहा है, एक मिनट आपको मैं दिखाता हूँ। ये लाइट को फोकस कीजिए आप। ये जो लाइट जा रहा है, this is basically a river and this is the bank, river bank, and this is also a bank। और ये हम एक जस्ट अपने रिजॉर्ट के अंदर ही है। तो वहाँ से हमें हाथी की आवाज़ सुनाई दी एंड आई डोंट नो, इट इज़ दैट सम वाइल्ड हाथी की, वही एलिफेंट कैंप का कोई हाथी। आई थिंक ये वाइल्ड हाथी है, मुझे लग रहा। थोड़ी देर के लिए एकदम फॉरेस्ट रिजर्व जैसी फीलिंग आई। और अभिजीत बोल रहा था लाइट ऑफ कर दो, सारे लाइट ऑफ कर दो। आपको लाइट ऑफ करके दिखाते हैं, रुकिए, होल्ड ऑन। और यहाँ पे कोई भी नहीं है हमारे अलावा। Whoa, full अंधेरा। So I'm not now you know focusing on Shogata, the torchlight, and off. This is how it is. पूरा अंधेरा। Okay, अभी लाइट ऑन कर सकते हैं।